historic election, NDA's chosen candidate Om Birla has now been elected as the Speaker of the 18th Lok Sabha. The elections took place on day 3 of the Lok Sabha after the opposition India bloc announced a counter-pick, that's K. Suresh, amid no consensus with the ruling bloc. However, amid a clear majority of the numbers clearly were stacked in favour of Om Birla, and he was elected as the Speaker of the lower house for a second straight term. With this win, Om Birla has achieved the rare feat of being elected for a second time as the Speaker of the House of People in the country. Now, after the declaration of the winner, Prime Minister Narendra Modi as well as Leader of Opposition Rahul Gandhi were seen walking up to Om Birla and congratulating him. Moments later, Om Birla was accompanied by the Prime Minister and the Leader of Opposition as well as Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju to the top chair. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। Meanwhile, Rahul Gandhi, in his maiden speech as the Leader of Opposition in Lok Sabha, voiced against the silencing of the opposition. Akhilesh Yadav, in fact, also joined the chorus as he was seen taking a jibe at the Lok Sabha Speaker. He said the Parliament should run at your command and not otherwise. Listen in. The opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूँगी क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा, पर इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डिप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डिप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आंकड़े कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखें। Now, minutes after Om Birla assumed the Lok Sabha Speaker's chair for a second straight term, he drew the ire of the opposition. The Speaker raked up the emergency and highlighted how the Constitution was demolished and innocents were jailed and killed back in 1975 by the then Congress government under Indira Gandhi. Now, as he spoke about the dark days of emergency, the opposition tried to disrupt his speech by raising slogans. The opposition MPs also refused to observe the silence. इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले
नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। So that happened in the parliament today, just moments after Om Birla was elected as the Lok Sabha Speaker for a second straight term. He had urged the entire House to rise and observe a minute's silence, but the opposition refusing to do so. Let me go across to my colleague Ravikant for more on this. Ravikant, क्या कुछ हुआ आज? ऑपोजिशन एमपीज ने स्लोगन्स रेज किए जब ओम बिरला ने एक मिनट ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व करने की एक डायरेक्शन दी हाउस को। देखिए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने के बाद सभी जो सांसद हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, उन्होंने ओम बिरला को अपनी तरफ से बधाई दी। उसके बाद अंत में ओम बिरला ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें इमरजेंसी की बातें बताई गई और उसको लेकर विपक्ष जो है बहुत नाराज था और उन्होंने बाहर आकर इसके खिलाफ नारेबाजी की। 1 मिनट का साइलेंस भी रखा गया। हालांकि जिस तरीके से रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ किया गया, किस तरीके से जनता की आवाज को बंद कर दिया गया और जो तमाम लोग थे उन पर किस तरीके का अत्याचार किया गया। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता और इसी को लेकर जो लोकसभा स्पीकर ने अपने प्रस्ताव में लाइनें पढ़ी उसका विरोध हुआ है और पहले ही दिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के इंडिकेशन पर इस तरीके की चीजें लोकसभा स्पीकर के द्वारा की गई जिसका हम विरोध करते हैं। एक दिन में 40 से 45 ऑपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड कर देना ये क्या इमरजेंसी नहीं है, इसकी तुलना जो है की जा रही है और इसी बात को लेकर जैसे ही सदन समाप्त हुआ उसका गतिरोध बाहर भी देखने को मिला। जी रविकांत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग रविकांत गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड।